So today we have a lecture of design and analysis of algorithm, and we will cover two algorithms, Dijkstra's algorithms and Huffman coding. First, we will take the review of our last lecture, and then we start our new algorithms. So in last lecture we were discussing greedy techniques for constructing the different solutions of optimization problem. So we discussed three properties of the greedy algorithm. The first was feasible. It has to satisfy the problem's constraints. And we have also discussed locally optimal. It has to be the best local choice among all feasible choices available on the stack. So it is locally it provides locally optimal solution. Irrevocable. Once merit cannot be changed on subsequent steps of the algorithm. It means once you have selected some choices for finding the next choice, so the previous choices you cannot change. So this is irrevocable. Then the applications, we discussed optimal solutions, change making for normal coin denominations. We had discussed this in last lecture. Minimum spanning tree. We had also discussed minimum spanning tree, single source shortest path. So today we will discuss the single source shortest path algorithm. So in minimum spanning tree, we had discussed two algorithms, Prim's algorithms and Kruskal algorithms in our last lecture. And the simple scheduling problem. So single source shortest path is also used for simple scheduling problems. And also we will discuss Huffman codes. So change making problem, we had discussed what would be the best choice if you want to provide the change to customer. So and we had discussed minimum spanning tree. It means if we have a connected acyclic subgraph of G that includes all G vertices. Spanning tree means if there is a graph and you are taking different graph from subgraph from a graph, and these graphs are acyclic. So these graphs are called spanning trees. But among these graphs, if you are selecting the graph which has the minimum weight, so that graph is actually minimum spanning tree. So we had discussed this algorithm last time. So here we have two algorithms, Prim's algorithms, MST algorithm, which actually compute the minimum spanning tree, and the other algorithm was Kruskal algorithms. This also used for computing minimum spanning tree. Both algorithms are good algorithms, and you can choose your algorithm according to your requirement of the problem. So both are good algorithms. So last time I also suggested you to perform exercise 9.2, exercise 9.2 and question 1A and B. So I hope you have performed these examples. Now today we will discuss shortest path Dijkstra's algorithm. So what is the difference between the minimum spanning tree, Kruskal and Prim's algorithms and shortest path Dijkstra's algorithm? Actually,
Prim's algorithm and Kruskal's algorithm gives you the minimum spanning tree which has no cycle and give the minimum weight, and all vertices are connected together. But when we talk about the Dijkstra's algorithm, it is a bit different with your Prim's algorithm and Kruskal algorithms. It is called single source shortest path problem. It means you have a single source, and when you are connecting one vertex to another vertex, so you always the distance, all the vertex, you consider all the distances of the vertex from the single source. From suppose if you are starting from A and you are going to B and then you are going to C, so you will compute all the distances from the single source, means A to B, B to C, and then you say okay, this is the total distance from A to C. Then again you compute the distance from A to B, and if B is connected with C and D, then A to B and B to D, and then you compute the distance from the single source, it means A to B and B to D, and take the minimum distance. Which one is the minimum, you take the minimum. So in Dijkstra's algorithm, given a weighted connected graph G, find shortest path from a source vertex S to each of the other vertices. Dijkstra's algorithm similar to Prim's MST algorithm with a different way of computing numerical levels. Among vertices not already in the tree, it finds vertex U with the smallest sum. It means in Prim's algorithm and Kruskal algorithms, we were not considering the previous distances. We just consider the current distance with the current node to other nodes. But here we are also considering the previous all distances which actually connect your path to your source. So dv plus w v comma u, where v is the vertex of which shortest path has been already found on preceding iteration. Such vertices from a tree, it means dv is the shortest path that you have already found and you have computed by your previous computation. So dv is the length of the shortest path from the source v to w v comma u is the length v of the h from v to u. It means now you want to compute the path from v to u. Okay, so then you discover new vertex which has the shortest path from the source, that is called EU. So the algorithm says, algorithm Dijkstra's, here what you are passing in Kruskal and Prim's algorithms, you are passing only G graph, but here you are not only passing the graph, you are also passing the source vertex. So if you have a graph A, B, C, D, where these are the vertices, so you have to select the source. Which one is your source? Okay, so actually source change the complete actually graph after you find the solution. So Dijkstra's algorithm for single source shortest path, input to a weighted graph G. G again here I would like to mention here this G. So last time we discussed V means vertices, set of vertices A, B, C, and similarly E, last time we discussed, this is the edges A comma B, similar A comma A comma B is already we have selected. Okay, so this is A comma C and different edges you are okay, and also you are passing S. S means anything. Suppose these are the vertices, you are selecting S as a source. Source is A, so it means you will start finding your shortest path from the A. A is the source, and you will try to find all the shortest path from other vertices to A. The length dv of the shortest path from S to V, this is the length of the shortest path, and its
Penalty met vertex PV for every vertex V in V. So here we use a queue data structure. Initialize queue, priority queue to empty for every vertex V in V. It means this is the set of V and each vertex is called small v. So the distance of a small v, initially we initialize with infinity distance, and penultimate vertex is null. Now you start inserting initialize vertex priority in the queue. So first you insert vertex A. So if you are vertex A, so what is the distance? So distance is initially 0 and you are inserting this vertex with its weight to Q. Okay, now update priority of S with DS. Okay, DS is the source distance, decrease Q comma S comma D. This is the source is A, and D is the minimum distance to A. VT is the tree vertex, is initially it is null, and now the algorithm, actual algorithm or the part of the algorithm is start from here. So 0 to number of vertices minus 1, do you start delete minimum Q, delete the minimum priority element. So you delete the minimum priority elements, and after deleting the minimum priority element, you pass this element to U star and you union this element with VT. VT is the set of vertex V, set of new vertex VT, which actually give you the resultant graph. For every vertex U in V minus VT that is adjacent to U star do, it means the vertex you are taking from V and you are inserting from VT. So the remaining vertices, suppose if you are taking A, so the B, comma C, D and other will be the part of the V, and VT, in VT we actually insert A because we are taking A from this. So every time we take a vertex from V and insert into VT, which is the minimum vertex. Okay, and if DU star plus U star comma V less than DU, then DU star plus V U star comma D penultimate vertex U star, and then again you decrease U comma DU. So for better understanding, we see an example. This is an example and we see the algorithm in this example. Here you can see you have the vertices. Vertices are V, A, comma B, comma C, comma D, and comma E. These are the vertices. In set of edges, you have A is connected with B, A is connected with D. Similarly, B is connected with C and so on. So you write this edges set. So you pass this graph to your algorithm. Now, what you take first, you take the source vertex. So you are passing also a source. So suppose we are taking A is the source in this example. So A is the source. So at this moment, A is connected with A, means 0 distance. So now we see how many edges are connected with A. So there are 2 edges, A comma B and A comma D. So we say, okay, A comma B. So the distance of A with B is 3. Now C is not connected with A, so the distance is infinity. A is connected with D with the distance of 7. This is the 7 distance. Okay, and E is not connected with A, so therefore E is infinity. After taking all the edges which are connected with A, okay, you take the minimum. Minimum is A comma 3 and A comma 7 in these the set of edges. This is the minimum A comma 3. So we
insert this into our new set. This we insert into the set u star vt u. Okay, and now after computing, so you have discovered this distance. This is the minimum distance. This is the minimum distance. Okay. So we say this is our minimum distance A to B. We have selected this here. Now, when now you want to see how many edges are connected with B. So B is connected with C and B is connected with D. So we will not only see the minimum distance of BD and BC, we actually also consider the source. So when we say C is connected with B, so what is the distance between C, B and A? So if we say A, B and C is 3 plus 4, okay, and also B is connected with D, then we say okay A, B and D. So we consider the source distance all when if you are at A, so you will consider all previous distances. So A, B and D is 5. So C is connected with B with 3 plus 4 distance. 3 plus 4 means 3 and 4. So all previous distances you will take. D, if you are at D, so you will say okay, D is connected through B and then A is 3 plus 2 and E is not connected with B, so it means this is infinity. So this is 3 plus 4 is equal to 7 and 3 plus 2 is equal to 5. So this is the minimum. So we take the minimum here, B comma 5. Now here you have connected this and this. Now you consider all the remaining vertices which we have not visited yet. So C and E is not, they are not visited yet. So you take distance. Okay, you want to ask anything? सर ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री कर रहे हैं ना? नहीं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं है, ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है और ये हम कर रहे हैं डिक्स्ट्रॉज एल्गोरिथम के थ्रू। ओके सर, थैंक यू। सही, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में बेटा प्रीवियस जो पाथ्स हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है। हम यहाँ पे तमाम प्रीवियस पाथ्स भी कंसीडर करते हैं। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री होती तो हम देखते बी टू सी एंड बी टू डी में मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सिंगल सोर्स क्या है, जो आपने सिंगल सोर्स सिलेक्ट किए, सोर्स क्या है ए, तो अब जो भी पाथ लेंगे उसके तमाम प्रीवियस डिस्टेंसेस को देखेंगे, सोर्स के साथ उसका डिस्टेंस मिनिमम क्या बन रहा है, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, चलिए। नाउ so the remaining vertices are C and D. So you take the distance, okay, C to D, D to B and V to A, okay, and also you consider E to D, D to B and V to A, ठीक है। अब which one is minimum? Okay, now look at here. So we are at D, ठीक है, we are at D, okay, and now we can move from D to C and D to E. So if we say okay C, so C means C, B comma 7, why B comma 7? We can say okay, if we are at C, so 4 plus 3, 7. Okay, if you are at E, so you can say okay, 4 plus 2 plus 3. It means this is 3 plus 2, 5, and this is 4. So 3, 5 plus 4, 9. So you are considering all the distances from E to D to B to A. This is source. Now C to B to A, this is source. So after computing these distances from source, so which one is minimum? This is 9 and this is 7. Okay, so 7 is the minimum. So we take 7 C B comma. So now we have the distance here, here, and we have this graph. Okay, now last vertex is E. So you can
move from E to C, C to B, B to A, or also you can move from E to D, D to B, and B to A. Okay, so which one is minimum? If we move from E to C, is 6 plus 4, 10, 10 plus 13, 13. Okay, now if we move from E to D, 4 plus 2, 6, 6 plus 3, 9. So this distance is the minimum distance. Okay, so we took this, and this is the, so now we have the graph. Now you can look at the graph. This is the single source shortest path graph. Means these are the vertices connected together, and we are considering the distance of all vertices with the source. Any question up to this point? सर सर ये जो थर्ड स्टेप है जिसमें हमने डी का डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, डी बी कॉमा 5, राइट? सो बेसिकली इसमें जब व्हेन वी कंसीडर सी, हम चेक करते हैं कि कौन कौन से कनेक्टेड नोड्स हैं विद डी, तो सबसे पहले हमने सी लिया है, राइट? सी जो कनेक्टेड वाला, ये वाला, ठीक है। तो सर इसमें बेसिकली ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिंस D is connected with C and has a distance of 5, so basically it will be 4 plus 3 and then plus 5 as well. नहीं, ये देखिए, you want to create a path from the source, ठीक है? Right sir. So you can move from C to B and C to D, ठीक है? Right. Yes sir. If you go from C to B and B to A, so you have 7. If you move from C to D, D to B and B to A, आपको जाना तो A पर ही है ना? जी सर। ठीक है, तो आपने सारे पाथ्स चेक करने हैं और उनका मिनिमम डिस्टेंस देखना है। तो C to B एंड B to A का डिस्टेंस है 7 और C to D, D to B एंड B to A का डिस्टेंस है 9। ठीक है। अब इसमें मिनिमम कौन सा है वो सिलेक्ट करके आपको इंक्लूड करा देना अपने VT के सेट में। वो जो मैंने बताया था आपके पास VT का सेट जो है वो इसमें ये सारे आपके पास इंक्लूड हो जाएंगे डिस्टेंस। तो सर बेसिकली हमें ट्रेस बैक करके देखना है सोर्स तक। एग्जैक्टली राइट। तो सर फिर जो E का केस है उसमें इन्होंने कैसे ट्रेस बैक किया है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप E पर हैं, यहाँ पर सपोज करें आप यहाँ पर, तो व्हाट आर द paths that exist to reach A, ठीक है? Yes sir. तो E to C you can go here, here is the path to B and B to A, ठीक है? This is the one path, so 6 plus 4 plus 3 13, सही है? फिर आपने कहा अब दूसरा बात, एक तो E से C पे जाके A पे जा सकता है और E से D से B एंड A ले सकते हैं। तो अगर मैं E to D, D to B और A लूं तो इसका जो डिस्टेंस बनता है वो 4 plus 2 plus 3 9 बनता है। तो विच वन इज लेस? 30 9। तो फिर हमने 9 ले लिया। तो हमने उसको बता दिया कि हम D के थ्रू जा रहे हैं, किस पर? A पर। A पर। अच्छा सर, वैसे मैं पूछ रहा था कि ये जो D के केस के अंदर जो हमने E वाला चेक किया है, राइट, उसमें ट्रेस बैक कैसे हो रहा है? हाँ, यहाँ से बात कर रहे हैं आप E के केस में? जी सर, D के केस में ये जो E है ना, जी अच्छा ठीक है। E to D, जी D to B, B to A, ये एक ही पाथ बनता है आपके पास ना यहाँ, राइट, ठीक है। अब आप E से और C to D, D to B, B to A, सही है, और C to B एंड B to A, ठीक है। तो जब आपने C to B, B to A लिया तो वो 7 हो गया, और दूसरा बात D to B एंड B to A लिया, क्योंकि अब आप देख रहे हैं आपके पास कौन कौन से कनेक्टेड हैं। देखिए
बी के साथ आपके पास कनेक्टेड है सी एंड बी के पास कनेक्टेड है डी, लेकिन जब आप डी पर आ जाएंगे तो अब आपके पास कौन से पाथ एग्जिस्ट करते हैं? ये एक तो ए टू बी का पाथ एग्जिस्ट करता है, बी टू सी और बी टू डी का पाथ भी एग्जिस्ट करता है आपके पास। ठीक है, तो जो ठीक है। पाथ एग्जिस्ट करते हैं उनको तो छोड़ देंगे, सही है, और अब उस वर्टेक्स पे मूव करेंगे जिसको हमने विजिट नहीं किया है, अभी तक इंक्लूड नहीं किया है हमारी वीटी के लिस्ट में। जो इंक्लूड होते जाएंगे, सही, ये इंक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया, ये इंक्लूड हो गया। अच्छा, कौन सा इंक्लूड नहीं हुआ? तो इसके मायने अब ई इंक्लूड नहीं हुआ, तो ई के पास चेक करेंगे कि ई किस तरह सोर्स पे पहुंच सकता है। तो आप कह सकते हैं ई टू सी और ई टू डी। अगर ये ई टू सी पे पहुंच जाए तो प्रीवियस पाथ तो एग्जिस्ट करते हैं, पहुंच जाएगा ये पर, लेकिन कौन सा फिजिबल है, ई टू सी पे जाना या ई टू डी पर जाना? विच वन इज मिनिमम? तो आपने कहा ई टू डी, डी टू बी एंड बी टू ए। ठीक है, दिस इज द मिनिमम। इफ यू टेक ई टू सी, सी टू बी एंड बी टू ए, दिस इज मैक्सिमम 6 + 4 + 3 13, but e to d 4 + 2 + 3 is 9। हाँ मास बताइए, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, दिस इज रियली वेरी वेरी जी सर, हम यस नाइन्थ यस वाला यस। हाँ सर, हम इसके हाँ नाइन्थ का टोटल आ रहा है उसे सेलेक्ट करेंगे जो स्मॉलेस्ट हाँ, है। क्योंकि 9 बेटा मिनिमम है ना, देखो e टू d is 4, d टू b is 2 is 6 and b to a is 3, तो 6 + 3 9। लेकिन अगर मैं ये वाला पाथ ले लेता, ठीक है, सपोज मैं आपको एक दूसरे कलर में इस पाथ को भी दिखाता हूँ। सपोज कि आप ये वाला पाथ ले रहे हो, इधर से जा रहे हो, तो ये कितना हो गया 6, 6 से आप पहुंचे 4 10 एंड 10 से आप सोर्स पे आ गए 3, तो कितना हो गया ये 3 + 4 13। + 6 13, सही है। लेकिन जब आप इस वाले पाथ पे आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अब आपने कहा कि नहीं मैं जो है वो ये वाला पाथ ले लेता हूँ, ठीक है, ई टू डी, डी टू ए, तो कितना हो गया 4 + 2 एंड +3 इज इक्वल टू 9, तो 13 is greater than 9, तो we will select this path e to d, d to b, b to a। ठीक है, तो आपने फिर इसलिए ये वाला ले लिया, सिलेक्ट कर लिया, और जब ये सर सिलेक्ट कर एक लिया सवाल, हाँ हाँ सर जैसे हम ट्रिवर्स करते हुए हमने एक मिनिमम लेंथ ले ली, फिर इसके बाद भी हम दोबारा दूसरी पाथ्स को भी चेक करेंगे या फिर उसी को फाइनल करेंगे? नहीं, जितने पास उस वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, अब ई के साथ सिर्फ 2 ही कनेक्टेड थे, सी एंड डी, तो अब हम यही 2 ही पास चेक कर सकते हैं ना, ई टू सी, सी से अब डी पे तो जा नहीं रहा, इसको तो चेक करेंगे नहीं, तो सी टू बी चेक करेंगे, सही है। अब हमें पहुंचना कहाँ है? सोर्स पे, तो सोर्स डायरेक्टली कनेक्टेड है बी से, हम डी पे जाएंगे ही नहीं क्योंकि ये भी डेड एंड है, क्योंकि बी पे आप डायरेक्ट, आपको तो ए पे पहुंचना है ना। व्हाट इज योर टारगेट? टू रीच एट ए सिंगल सोर्स, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि अच्छा ई आल्सो इज कनेक्टेड विद डी, तो ओके यू कैन ई टू डी, जब डी पे पहुंचे, डी किसके साथ कनेक्टेड है? ओनली विद बी, तो डी टू बी, बी इज कनेक्टेड विद सी एंड ए, तो आपको तो ए पे जाना है, तो आपने सिलेक्ट कर लिया ए, ठीक है। तो इस तरह तमाम जितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं फॉर द सिंगल सोर्स, वो सिलेक्ट करने हैं, उनका कंप्यूट करना है आपको सम, और देखना है उसमें मिनिमम कौन सा है, और वो मिनिमम आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ, ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये एल्गोरिथम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, अगर आप देखें ये गेम प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके पास। जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ किस किस पोजीशंस पे आप पहुंच गए, उसको आप पूरा ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ के थ्रू आप डिस्टेंसेस कंप्यूट करते हैं, पाथ्स कंप्यूट करते हैं, सारे पाथ्स आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और उसको पता होता है कौन सा वर्टेक्स किसके साथ कनेक्टेड है और मुझे कहाँ पे किस तरह जो है मूव करना है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप राउटिंग के लिए, स्विचिंग के लिए,
कम्युनिकेशन के लिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉल कहाँ से स्टार्ट हुई आपके पास और राउट होकर किस सब्सक्राइबर के पास गई और किस सब्सक्राइबर से अब ये पूरी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुई। तो मिनिमम राउट आपको चाहिए फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। सिंगल सोर्स, सपोज यू आर making a call to your friend and friend is actually live in Islamabad. Okay, so it will actually try to find the shortest path of all the towers of communication towers which actually connect your call with your friend who is in Islamabad. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया और समझ लिया एक बार, तो आप इसको मुख्तलिफ अपनी प्रॉब्लम्स जहाँ पे भी आपके पास आएगी शॉर्टेस्ट पाथ की, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप बात कर रहे हैं कि आपको कनेक्टेड ग्राफ चाहिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री चाहिए, तो क्रूस्कल और प्रिम्स बेहतर है। लेकिन सिंगल सोर्स के साथ कनेक्टिविटी चाहिए और आपको वहीं पर आप सिंगल सोर्स के थ्रू आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो फिर आपने जो है वो डिक्सट्रॉज एल्गोरिथम यूज़ करना। ठीक है, अच्छा, तो आपको समझ में आ गया, आगे चले हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज कोडिंग प्रॉब्लम। अब ग्रीडी एल्गोरिथम में ये आपके पास एक लास्ट एल्गोरिथम है इस चैप्टर का, और ये भी समझ लें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्रेशन एल्गोरिथम्स यूज करते हैं कंप्रेस करने के लिए डेटा। ठीक है, अब कल की मैं आपको बात बताऊं कि कल मुझे एक 300 GB का इंडेक्स कंप्रेस करना था, सही। तो मेरे पास हार्ड डिस्क फुल हो गई और वो इंडेक्सेस काफ़ी मेरे पास बने हुए थे। मेरे पास जो है वो तकरीबन 2 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई हैं अपने सिस्टम पर जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, तो वो फुल हो रही थी। अब मैं क्या करता, प्रीवियस इंडेक्सेस का उनको मैंने, वो इंडेक्सेस भी कोई 5-5, 6-6, 10-10 दिन ले लेते हैं बनने में, तो उनको मैं डिलीट तो नहीं कर सकता था। अब कोई इंडेक्स 300 GB का है, कोई 400 GB का है, कोई 600 GB का है। तो अगेन फिर मैंने यही सोचा कि मैंने एक 500 GB वाली हार्ड ड्राइव ली और उन इंडेक्सेस को मैंने कंप्रेस करना शुरू किया। तो आपको हैरत होगी कि 300 GB का इंडेक्स मेरे पास 30 GB पर आ गया। और वो 30 GB के इस तरह मैं मुख्तलिफ इंडेक्सेस को जो है वो मैंने कंप्रेस किया और कंप्रेस करके वो मैंने सारे प्रीवियस जो इंडेक्सेस थे अपने, वो मैंने 500 GB ड्राइव में कंप्रेस्ड फॉर्मेट में रख दिया। अब वो कंप्रेस होकर फॉर्मेट में तो रख दिया आपने, फिर आप उसको डिकम्प्रेस करेंगे वो उतना ही साइज लेंगे। लेकिन इसके पीछे कौन कौन क्या लॉजिक है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन इसका जो बेसिक एल्गोरिथम्स है आपके पास कंप्रेशन का, वो हफमैन कोडिंग है। ठीक है, और ये आपके पास डेटा कंप्रेस कर देता है और डिकम्प्रेस कर लेते हैं आप उसके बाद इसको डेटा को। ठीक है, तो आपको पर्पस समझ में आया कि हम कंप्रेशन क्यों करते हैं डेटा की, क्योंकि हम जो है वो इसका साइज रिड्यूस करना चाहते हैं और फिर डीकम्प्रेस करके दोबारा हम इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, कंप्रेशन में कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस बोथ फंक्शंस टेक टाइम, ठीक है, बट they are very useful. They actually save your space. So sometimes you save your space and sometimes you save your time. So both you have the two options. और बहुत ही कम ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन एक ही जगह पर आपके पास दोनों चॉइसेस हों कि आप सेव भी कर रहे हो स्पेस और टाइम भी आपका कम लग रहा हो, सही है, आपके ऑपरेशन में। तो आपको जो है ट्रेड ऑफ है, इसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हफमैन कोडिंग हम देखेंगे। हफमैन कोडिंग बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एनी बाइनरी ट्री with edges labeled zeros and ones yields a prefix free code of characters assigned to its leaves. Optimal binary tree minimize the expected weight. Average length of code word can be constructed as follows. Huffman algorithms initialize n one-node trees with alphabet characters and tree weights with their frequencies. So repeat the following step n-1 times. Join two binary trees with smallest weight into one as left and right subtrees.
and make its weight equal to sum of the weights of two trees. Mark edges leading to left and right subtrees, zeros and ones respectively. Okay, so मैंने तो just read किया और शायद आपको इतना समझ में नहीं आया हो. अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल. Okay, suppose you have these characters A, B, C, D underscore. Okay, so you have these characters A, B, C, D underscore. I give you another example. Suppose you have a document and document contains different characters, maybe ASCII characters, Unicode characters, or maybe any characters. So what do? You first compute the number of occurrence of each character. Suppose A is repeating, the frequency of A is 35% in your document. The number of frequency is B is 10%, C is 20%, D is 20%, and underscore is 15%. So it means A, suppose if your document contains 100 characters, so A is occurring 35 times in your document. Similarly, B is occurring 10 times, C is occurring 20 times, D is occurring 20 times, and underscore is occurring 15 times. So this is the first, you take your document, then you take the frequency of all characters. Okay, so this is the basic step of compression, Huffman coding. Okay, what you are taking your document. In the document, you are taking the frequency of the characters. Okay. After this, अगर आपको ये मिल गई, ठीक है, you arrange all the characters with their frequencies in ascending order. ठीक है, अब आपको ascending order में रखना है. तो यहाँ पे अब आप जरा इसका ascending order देखें कि आपको इसका ascending order क्या है. ये देखिए, B इज फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा B. ठीक है, कलर वाइट ले लेते हैं. ठीक है, B फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा. फिर उसके बाद अंडरस्कोर सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा. C, D एंड A. तो ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया. तो हमने क्या रखा सबसे पहले, B अंडरस्कोर C, D एंड A. देख रहे हैं आप यहाँ पे. नाउ अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये रख दिया, नाउ यू हैव टू मेक अ बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री बनानी है तो आपने क्या करना है, इनिशियल टू कैरेक्टर्स को आपने सम कर देना. ठीक है, आपने इन दोनों का सम किया तो सम आपके पास आया 0.25. ठीक है, जब आपने सम कर देना है तो सम को भी असेंडिंग ऑर्डर में रखना है. तो जब आपने इन दोनों का सम किया, इन दोनों का, तो वो आपके पास आएगा 0.25, यानी कि 0.1 प्लस 0.15. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 0.25. तो 0.25 इज ग्रेटर देन 0.2 एंड 0.2. ठीक है, एंड लेस देन 0.35. सो इसकी पोजीशन यहाँ बन जाएगी 0.25. ठीक है, सो नाउ यू अगेन सम these two initial characters. सर पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, उसके बाद लेफ्ट टू राइट ऐड करना शुरू किया, राइट? जी, पहले हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया. ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको रखा और ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद पहले दो ऐड करके फिर प्लेस किया. पहले दो ऐड किए और इनका सम किया. सम देखा कि सम की वैल्यू क्या आती है. सम की वैल्यू जो भी आएगी उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और वो एक नोड बन जाएगा. जी सर, तो बेसिकली जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया शुरू में ही, तो फिर जब हम ऐड करते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं ना कि स्मॉलेस्ट टू
तो वो ऑलरेडी जाहिर है फर्स्ट पे आएंगे बिकॉज ऑफ द हाँ, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू आपकी का कंसिडर किया तो स्मॉलेस्ट टू शुरू में ही होंगे, तो वो शुरू में जब आपने स्मॉलेस्ट टू पिक किए तो उनका सम क्या बनता है वो चेक करेंगे। फिर उस सम को, जो भी सम बनता है, फिर उस वैल्यू को दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। तो अब वो तो बन गया 0.25, तो जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो 0.25 0.2 एंड देन 0.25 एंड 0.35 इस तरह बन जाएगा। अब चूंकि जो भी चीज सम करेंगे वो नोड बन जाएगी किसकी, ट्री की। अब ये ट्री की नोड क्या बन गई, ये सर्किल में आपने देखा 0.25, and this node is actually composed of two characters 0.1 0.15 यानी b and underscore। ठीक है, ओके सर। ठीक है। आफ्टर arranging the characters and making a node, you again pick initial two values, इन टू वैल्यूज को फिर आपने पिक किया और देखा तो 0.24 0.2 एंड 0.2 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, इस 0.4 को अब आपने फिर अरेंज करना है, तो उसकी सिचुएशन अब आप देखें ये बनेगी। अब जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको जी सॉरी दरवाजे में यार कोई था। हाँ, तो यहाँ पे आप देखें 0.2 0.4 सही है। आफ्टर समिंग अप दीज टू वैल्यूज सो वी हैव 0.4 एंड 0.4 इज ग्रेटर देन 0.25 as well as 0.35, so the position of 0.4 is here, okay, in ascending order. Okay, so again this is another node of the tree, and this node is composed of C and D, and the values of C and D is 0.2 and 0.2. Okay, now what will happen, now you again combine these two initial values, so 0.25 and 0.35, which is equal to 0.6. So 0.6 is greater than 0.4, so 0.6 comes here and this is 0.4. But 0.6 is composed of two things. One is the character and other is a node which is 0.25. 0.25 and this is 0.35. So this is composed of this. तो ये ट्री बन गई। अब लास्ट में आपके पास यही दो नोड बची हैं। सही, एल्गोरिथम स्टॉप कब होगा, जब आखिरी दो नोड्स भी कंबाइन कर लेंगे आप। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1.0 composed of 0.4 and 0.6. 0.4 is composed of 0.2 and 0.2. 0.6 is composed of 0.25 and 0.35, and 0.25 is composed of 0.1 and 0.15. ठीक है, after this what you will do, okay, यहां तक तो आपने ट्री बना लिया। आफ्टर मेकिंग द ट्री, सही है, अब आप क्या करेंगे, एजेस पर लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग क्या करेंगे, लेफ्ट एज को हमेशा 0 करेंगे और राइट को 1 करेंगे। तो ये देखें 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अच्छा, लेबलिंग कर दी, लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 राइट 1, लेफ्ट 0 एंड राइट 1। अब आप लीफ पर पहुंच के देखेंगे कि इसका कोड क्या बनता है। ए का कोड आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 1, ये क्या बन गया, ए का कोड। बी का कोड आप चेक करें तो बी कहां पर है, बी यहां पर है, देखें बी यहां पर है आपके पास। तो रूट से स्टार्ट करें 1 0 1, सॉरी 1 0 0, तो ये आपके पास 1 0 0 आ गया बी का कोड, ये ए का कोड आ गया। अब सी का कोड चेक करें तो ये जाएगा आपके पास, सी यहाँ पर है, ये देखें सी यहाँ पर है, तो 0 0, तो ये सी का कोड हो गया 0 0। डी का कोड क्या होगा, 0 1, डी का कोड हो गया 0 1। इसी तरह आपके पास
चाहे वो अंडरस्कोर कहाँ पर अंडरस्कोर ये है, तो यहाँ पर आपने 101, तो दिस इज 101, ये कोड हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तुम लोग? यस सर। सर ये हमेशा बाइनरी ट्री बनेगा ना? हाँ, हमेशा बाइनरी ट्री बनेगा, क्योंकि हमेशा दो हम कंबाइन कर रहे हैं ना, सही। तो ये हमेशा बाइनरी ट्री बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर होगा ये कि अब हम देखेंगे कि कितना कंप्रेस हुआ आपके पास डेटा। ठीक है, डेटा कह रहे कितना कंप्रेस हुआ, तो ये तो आपके पास टेबल थी, इसमें आपके पास कोडिंग्स आ गए। ठीक है, तो उसको करने का तरीका कार ये है कि आप कंप्रेशन रेशो देखेंगे। कंप्रेशन रेशो में सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है आपके पास, जैसे ए था आपके पास, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 0.35 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का कोड है इसका? 2 प्लस करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बी में? 3 प्लस 0.2, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स? 2 प्लस 0.2 नंबर ऑफ डिजिट्स 2 एंड प्लस 0.15 नंबर ऑफ डिजिट्स 3। इन सब का सम करेंगे। ठीक है, और Okay. इन सब का सम करने के बाद और अब आप क्या करेंगे, तो वो बनेगा आपके पास टोटल 2.25। ठीक है, तो 2.25 जब सम आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंथ क्या है आपके पास किसी भी कोड की? 3 बिट्स मतलब। हाँ, तो कंप्रेशन रेशो इसको हम कहते हैं CR, तो 3 इज द मैक्सिमम लेंथ। सही है, 2.25 इज द सम ऑफ द लेंथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 मैक्सिमम लेंथ इनटू 100। तो इसने बताया कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 25% कंप्रेस हुआ। 25% कंप्रेस का मतलब है कि अगर 100 इसका साइज है तो 25 रह जाएगा साइज या 75 रह जाएगा? नहीं, 25% कंप्रेशन रेशो है इसका, तो इसके मायने कंप्रेस कितना होगा आपके पास, ये 75 इसका वेट रह जाएगा। अच्छा सही। हाँ, 25% कंप्रेस हो गया। सही सही सही। तो अगर 100 GB होगी फाइल तो वो 75 GB रह जाएगी और 25 GB कंप्रेस हो जाएगी, यानी अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। अच्छा, ओके। अब अगर मैं कोई और एग्जाम्पल ले लूँ, चलो मैं एक एग्जाम्पल और करता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, सही है, आपने 3 से माइनस सब्ट्रैक्ट और डिवाइड क्यों करवाया? यहाँ पर जी सर। 3 फिर है, देखिए जब भी आप रेशो ले रहे होते हैं तो वो रेशो क्या चीज़ होती है आपके पास, किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि आपने 80 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100, तो आपके मार्क्स में 80 किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ? 100 के साथ। तो इसीलिए मैं जब यहाँ पर 3 माइनस 2.25 कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि ये तो मेरे पास आ गया कि मैक्सिमम जो डिजिट्स लेंथ है आपके पास, और उसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स लेंथ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू आ जाएगी, उसको कंपेयर करूंगा मैक्सिमम लेंथ के साथ। ठीक है, तो इसलिए डिवीजन 3 के साथ की गई है आपके पास कि यू आर कंपेयरिंग विद द मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, अदरवाइज दिस इज, इसको हम कहते हैं वेरिएबल लेंथ कोडिंग। वाई वेरिएबल लेंथ? क्योंकि हर एक कैरेक्टर की वेरिएबल लेंथ है, तो इस वेरिएबल लेंथ को सबसे पहले आपने सम अप किया, देन सब्ट्रैक्ट किया मैक्सिमम लेंथ से और कंपेयर किया मैक्सिमम लेंथ के साथ। ठीक है सर ओके आप सर। ये चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने जो 2.25 कंप्यूट किया है वो कैसे किया है, एवरेज बिट्स पर कैरेक्टर? बेटा 0.35 तो आपकी फ्रीक्वेंसी है ए की। जी सर। ठीक है, जी और 2 जो है वो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसके कोड के, तो इन ओके दोनों को ओके। आपने मल्टीप्लाई किया। 0.1 आपकी बी की फ्रीक्वेंसी और इसमें 3 डिजिट्स का कोड है। फिर इसी तरह आपने सी, डी और ये आपके पास अंडरस्कोर। ठीक है सर, गॉट इट।
और फिर इसको सम करके और मल्टीप्लाई करके, यानी कि सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इज इक्वल टू 2.2। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये तो आपके पास हो गया इस तरह। अगर मैं आपको, अच्छा अब डिकोडिंग की बात आ जाए, सपोज करेंगे अगर आपको कंप्रेस करेंगे, अगर मैं इसमें से कहूँ कि मैं आपको कहूँ कि आपको कोड भेजा, ठीक है, और वो कोड क्या बनेगा, बी है 100, ठीक है, ए है आपके पास 11, ठीक है, और डी है आपके पास इसमें 01। आपको कोड ये मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, किस तरह इसको डिकोड करेंगे। डिकोड ऐसे करेंगे हम इसको कि हम करेंगे फर्स्ट बिट को पिक करेंगे, इसकी फर्स्ट डिजिट को पिक करेंगे और कंपेयर करेंगे इस टेबल में। तो इस टेबल में एक तो यहाँ पर आया है फर्स्ट डिजिट पे 1, एक यहाँ पर आया फर्स्ट डिजिट पे 1 और एक यहाँ पर आया, ठीक है। तो पहला तो कंपेयर हो गया। फिर हम करेंगे अच्छा 1 के साथ 0 कहाँ कहाँ है, तो 1 के साथ 0, तो फिर ये तो खत्म हो जाएगा। 1 के साथ 0 यहाँ पर भी आया और 1 के साथ 0 यहाँ पर भी आया, ठीक है। अच्छा सर हमें हमें ये वाला कोड वर्ड का टेबल मिलेगा या हमें ट्री भी मिल सकता है? क्योंकि अगर हमें ट्री मिलेगा। आपको तो सिर्फ ये मिलेगा बेटा। अच्छा अब सर आपको हम। ट्री बनाना है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि इसको डिकोड करो, ओके ठीक। और या कोड दे दूंगा तो बोलूंगा इसको डिकोड करके बताओ इसका कैरेक्टर क्या बन रहा है या वर्ड क्या बन रहा है इसका, ठीक है। तो मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ किस तरह ये डिकोडिंग हो रही है, ठीक है। अगर आपको ये कोड मिल गया, मैं आपको कहूँ 1001101 और आपको ये नहीं लिखूँ, ये मैं लिखा हुआ नहीं है सपोज कर, तो आप कैसे बताएंगे कि इधर क्या है। तो आप क्या करेंगे कि इस टेबल से देखेंगे कि 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो आपने कहा 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है स्टार्टिंग में। 1 के साथ 0 कहाँ है, तो आपने कहा 1 के साथ 0 यहाँ है और यहाँ है, तो इसके मायने यहाँ तो नहीं है। तो आपने कहा 1 के साथ अगेन 0 कहाँ पर है, तो आपने कहा 1 के साथ 0 सिर्फ यहाँ पर है, सही है, और यहाँ पर नहीं है। तो इसके मायने अब आपके पास सिर्फ एक ही, अब आपने कहा कि यही कोड है, तो ये कोड किसका था, डी का। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह एल्गोरिथम काम करता है। फिर दोबारा आप इधर आ गए, ठीक है। फिर अब आपने दोबारा इनिशियल स्टार्ट लिया। अब आप देखिए दोबारा भी इनिशियल स्टार्ट लेता हूँ और फिर टेबल पे जाता हूँ, सही है। आपने कहा कि अच्छा ठीक है 1 कहाँ कहाँ है, आपने कहा 1 यहाँ पे स्टार्टिंग में, 1 यहाँ पे स्टार्टिंग में, 1 यहाँ पे। फिर आपने कहा 1 के बाद 1 कहाँ पर है, तो आपने कहा कि 1 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। तो बस एक ही आपको करेक्टर मिल गया, आपने कहा कि ये ए है, ठीक है, क्योंकि ये ए का कोड था। अच्छा फिर अब आप आगे आगे, ठीक है, और आपने कहा कि ठीक है, अब आप देखिए, अब आपने कहा कि ये तो हो गया मेरा, ये भी मिल गया। अब क्या बचा 0, आपने कहा 0 कहाँ कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, आपने कहा 0 यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा फिर 0 के बाद 1 कहाँ है, आपने कहा 0 के बाद 1 यहाँ नहीं है लेकिन 1 यहाँ है। अच्छा तो एक ही जब सिंगल रह जाता है ना करेक्टर, तो उसी का आप वो सिंबल उठा लेते, तो आपने कहा कि ये बैड हो। तो दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग और दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग। एनी क्वेश्चन। तो सर ये हमें कोड वर्ड कैसे पता चले? कोड वर्ड कैसे पता चलेगा भाई, मैंने आपको बताया ना कि किस तरह आप एक एक कैरेक्टर उठाते जाएंगे, एक एक डिजिट उठाते जाएंगे और टेबल से कंपेयर करते जाएंगे, सही है। जहां पे भी टेबल में से कंपेयर होने के बाद सिर्फ एक ही सिंगल रह जाता है, तो उसी का कोड उठा लेंगे। सर आई थिंक वो ये पूछना चाहता है कि हमें कोड वर्ड स्टार्टिंग में नहीं पता होगा ना, तो हमें सिर्फ कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो पहले हम ट्री बनाएंगे फिर हम कोड वर्ड एग्जाम्पल निकालेंगे। हम एक एग्जाम्पल का, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल का, ओके सपोज एक न्यू एग्जाम्पल में मेरे पास, पहले तो मैं सिंबल्स लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सिंबल्स हैं जिसमें है आपके पास ए बी सी डी
ये लाइन मुझसे टेढ़ी बन गई है, इस लाइन को हटा देते हैं, ठीक है। और मेरे पास ये डी और ये अंडर स्कोर, ठीक है। अब सपोज करेंगे ये इनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपके पास एक ही है 0.4, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.15, सॉरी, ठीक है, 0.15 एंड दिस इज आल्सो 0.15, ठीक है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो विच वन इज द मिनिमम, बी, ठीक है। तो सबसे पहले बी आ जाएगा, तो जिस तरह हमने यहाँ पे किया था इसी तरह के बॉक्सेस बना लेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास पहला बॉक्स बनेगा, ठीक है, वो है 0.1 और इसमें आ गया बी। दूसरा बॉक्स बनेगा, सही, इसमें आ गया डी 0.15, फिर आ गया आपके पास, सॉरी मैंने इसको 0.15 और ये आ गया अंडर स्कोर, और इसको भी सही कर देता हूँ, इसकी वैल्यू इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में 0.15 और ये आपके पास था डी की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास आ जाएगा सी 0.2, ठीक है, और फिर आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है, 0.4 ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में उसने रखा, असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद इन दोनों का सम किया तो 0.1 एंड 0.15, क्या सम बनेगा बताओ, 0.1 एंड 0.15 क्या सम बनेगा, 0.25 हो जाएगा और 0.25 आएगा 0.2 और 0.4 के बीच में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने कहा 0.15 इधर आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू है अंडर स्कोर की। फिर आपके पास आ जाएगा 0.2, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू सी की, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.25, 0.15 नोट बन जाएगा ना ये नोट बन जाएगी, और ये नोट कंप्राइजेज ऑफ 0.1 एंड 0.15 और ये आपके पास बन जाएगी 0.15 विच इज डी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वही नोट किसकी, 0.4। फिर जब आप 0.15 एंड 0.2 को प्लस करेंगे इन दोनों को, अब इसकी बारी है, तो क्या बन जाएगा आपके पास 0.35, 0.25 नहीं 0.2, 35 सॉरी 35 सॉरी तो फिर 0.35 इज ग्रेटर देन 0.25, जी, तो तो राइट पे आ जाएगा। हाँ 0.25 यहाँ आ जाएगा, विच इज कंप्राइजेज ऑफ 0.1, ठीक है, बी, एंड विच इज कंप्राइजेज ऑफ 0.15 विच इज डी, ठीक है, और 0.35 is comprises of 0.15 and 0.2 0.15 किसका था, अंडरस्कोर का था, dash ठीक है, 0.24 0.2 वो था सी का, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए 0.4 एंड
दिस इज अच्छा सर, कि जो इतनी लंबी हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं नोट्स बनाने की, इसी में ज़रा टाइम लगता होगा ना कंप्यूटर को कंप्रेस करने में। हाँ, लेकिन ट्री में नोट बन रही है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि जब एक बार टेबल बना लेता है ना वो अपने पास, हम्म, तो ये इसको बनाने में बहुत कम टाइम लेता है। असल में टेबल बनाने में उसको कंप्यूट करने में टाइम लगता है कि ए की अकरेंस कितनी है, बी की कितनी है, अच्छा। सी की कितनी ओ, है। बस ये बन गई तो समझ ले डिकोडिंग इनकोडिंग तो बहुत आसान है। सही, और जब मतलब भी अगर आप फाइल सेव करते हैं ना कंप्रेस फॉर्मेट में, तो उसके साथ टेबल भी सेव होती है। सही जैसे रार फॉर्मेट है या जिप फॉर्मेट है, तो उसके साथ एक टेबल सेव होगी जो उसकी कोड को रखेगी, फिर इसी तरह वो डिकोड करेगी उस टेबल को देखकर। सही। तो आप पहले कर लें, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। अब 0.25 0.35, ठीक है, इनको कंबाइन कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो 0.6 is comprises of 0.25, ठीक है, and 0.35, and this comprises of 0.1 0.1 बी, b, 0.15 डी, 0.15 d, ठीक है, and 0.15 underscore, and this is 0.2 c। और यहाँ पे वही आ जाएगा आपके पास। अब ये देखें कि आपने इन दोनों को कंबाइन किया, तो इन दोनों को कंबाइन करने से 0.6 आ गया, और सही यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा जो अभी तक कंबाइन नहीं हुआ है। और लास्ट में जो ट्री बनेगी वो बन जाएगी, अब आप देखिए 0.1। सर, आप ऊपर ही बना दें, फिर पूरा दोबारा बनाना पड़ेगा, ऊपर ही बस एक। मैं ये लिख लेता हूँ 0.1, 0.25, वो वैल्यूज नहीं लिखा है, ठीक है, 0.4, ठीक है, ठीक है, हाँ सर, यहाँ पे 0.6 आएगा। 0.1, ठीक है, 0.15, ठीक है, एंड 0. ये इधर चलिए, सर वो जो 0.25 वाला है वो 0.6 है। ये तो 0.4 आ गया ना ए का, हाँ, और और जो लेफ्ट पर है ये 0.6 है। ये 0.6 है, सर बिल्कुल। आप दोबारा नहीं लिखे, ऊपर वाले पे एक वो बना दें नोड ऊपर अच्छा टॉप अच्छा, पे। हाँ, ये भी और सही। सर हाँ 0.4 वाला जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा और 0.6 वाला राइट साइड पे। हाँ, ऐसे ही, ऐसे हाँ ही। ये भी है। ओके वो इसीलिए मैं नई नोट बना रहा था ना। ओके। ठीक है, तो अब नई नोट बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, इतना वो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया 1.0, ठीक है, 1.0 में अब 0.4 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये स्मॉलर है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास ए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.6, ठीक है। 0.6 में फिर 0.25, ठीक है, और 0.35, ठीक है। फिर 0.25 में ये आपके पास आ गया 0.1, और ये आ गया आपके पास बी, और ये आपके पास आ गया 0.15 विच इज डी। इसी तरह आपके पास यहाँ पर एक बन जाएगा 0.15 अंडरस्कोर, और यहाँ बन जाएगा आपके पास 0.2 सी। हो गए सारे कोड। अब आप क्या करेंगे, वही लेफ्ट राइट, सही है। क्या लेफ्ट राइट की क्या था, लेफ्ट 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम इसकी कोडिंग देख लेंगे। तो ए का कोड क्या बन रहा है आपके पास, सिंपल 0, ठीक है। ए का यस, कोड क्या, 0। इसको कलर चेंज करके कोड इसको लिख देते हैं व्हाइट में, ये आ गया 0, ठीक है। अच्छा, बी का कोड क्या बन रहा है, देखिए 1 0 0, ठीक है। तो बी का कोड है 1 0 0। सी का कोड क्या है 1 1 1,
ये हो जाएगा 111, ठीक है। अच्छा डी का कोड क्या है, डी यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 101, ठीक है। और अंडर स्कोर का कोड क्या बनेगा 110, 110, ये सर आपको बस जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा दफ़े रिपीट हो रहा है, उसका सबसे छोटा कोड है, तो इससे फ़ायदा होगा, राइट? हाँ, इससे ज्यादा फायदा ये होगा कि कंप्रेस ज्यादा करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपके पास ये बन गई। अच्छा अब अगर मैं आपको कहूँ सिंपली, मैं आपको दे देता हूँ एक कोड, आप मुझे बताइए किस चीज का कोड है। मैंने आपको लिख दिया 1111000, मैंने आपको एग्जाम में दे दिया और मैंने पूछा कि इसको डिकोड करो, तो कैसे करो? सर CBA। ठीक है, कैसे पहचाना? सबसे पहले सर फर्स्ट डिजिट, तो देखिए कि फर्स्ट डिजिट में 1 1 कहाँ आ रहा है, तो आपने कहा इनमें इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 में, इससे भी 1 है, ठीक है। अब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अच्छा 1 के बाद 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आपने कहा कि 1 के बाद यहाँ आता है या फिर ये यहाँ आता है। अच्छा फिर 1 के बाद अगेन 1 कहाँ आता है, तो आपने कहा कि वो सिर्फ यहाँ आता है और यहाँ नहीं आता, तो क्या बन गया वो सी। क्लियर हो गया तुम लोगों को? ठीक है। यस सर। सिमिलरली अब आपने कहा जीरो, आपने कहा जीरो यहाँ पे आता है और कोई जीरो से शुरू ही नहीं होता, तो इसके मायने फिर ये ए ही होगा। फिर आपने कहा कि अच्छा फिर जीरो, नहीं ये आप बस मैंने क्या लिख दिया 1 1 1, अच्छा 10, सॉरी 10, तो 10, तो 10 में 100, तो आपने कहा कि 100 का कोड है आपके पास, ठीक है। और इसी तरह आप लास्ट में जीरो बचा तो वो आपके पास, तो ये CBA, ठीक है। यस। अच्छा सर, मुझे जो पूछना था, ये पूछना था कि अब अगर बहुत बड़ी फाइल है, 500 GB की एक फाइल है, राइट? तो अब उस पूरी 500 GB की फाइल में ढूंढेगा कि कितने कैरेक्टर्स या कितने सिंबल्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, पहले फ्रीक्वेंसी निकालेगा और इसमें उसको ज़्यादा देर लगेगी। अच्छा, और एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि अगर 500 GB का ही साइज़ है लेकिन मल्टीपल फाइल्स हैं, मतलब 500 GB के अंदर मेरे ख्याल से 1000 फाइल्स हैं छोटी छोटी, तो उसको जब कंप्रेस करते हैं तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल से भी। हाँ तो देखिए ना, अब दो चीजें, नंबर वन सिंगल फाइल और मल्टीपल फाइल्स, ठीक है। अब अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो हर एक फाइल की अलग टेबल बनेगी। वो हर फाइल के अलग टेबल रखता है या फिर एक टेबल? अच्छा, हर फाइल के अलग रखता है। हर फाइल की अलग टेबल बनेगी, क्योंकि हर फाइल का स्टार्ट और एंड ऑफ फाइल अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे ही वो एक फर्स्ट फाइल पिक करेगा, आपके पास सपोज करें एक फोल्डर है उसमें 100 फाइल्स हैं, ठीक है। उसने फोल्डर पिक किया, उसका नाम पिक किया, ठीक है। उसमें से फर्स्ट फाइल पिक की, उस फाइल की टेबल बनाई, सही है, उसकी फ्रीक्वेंसीज निकाली, कौन से करेक्टर से, यूनिकोड एस की जो भी थे उसकी टेबल बना ली, ठीक है। उसकी ट्री बनाई, उसको सेव किया दिया। फिर उसने दूसरी फाइल पिक की, उसकी टेबल बनाई, उसको सेव कर दी। तो ये आपके अपने पास कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है कि डायरेक्टरी दिस, फाइल दिस, टेबल दिस, डायरेक्टरी दिस, फाइल दिस, टेबल दिस, तो उसके पाथ के साथ वो स्टोर करता है, और जब वो डीकंप्रेस करेगा उसी पाथ पे वो उन चीजों को सेव करेगा जिस पाथ से उसने पिक किया, सही। ठीक है। तो इस ठीक है। तरह सब डायरेक्टरीज बनाता चला जाएगा फिर, ओके। ठीक है। तो और इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब करने में। इसको काफी ज्यादा टाइम लगता है। अब मैं आपको बताऊं कि कंप्रेस करने में मुझे 300 GB का जो डेटा था, SSD ड्राइव थी, i7 कंप्यूटर था, 64 GB रैम थी, सोचें आप, ठीक है। तो मैंने गलती ये की कि मैंने उसको SSD ड्राइव से कंप्रेस करवाया, तो इस जो सिंपल आपके पास ड्राइव होती है जिसमें सिलेंडर लगा होता है और डिस्क होती है, तो वो तो फिर मैं परेशान हो गया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन गुजर गया, कंप्रेस नहीं कर रहा, और वो कंप्यूटर चल भी रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, और लाइट भी ब्लिंक कर रही है हार्ड डिस्क की। तो यार ये तो
मसला है बड़ा, अब क्या करें। तो मैंने उसको कैंसिल किया, कंप्यूटर रीस्टार्ट किया, फिर मैंने उसको SSD से SSD पे ही कंप्रेस कराया। तो उसने 3.5 घंटे लिए, 3.5 hours लिए 300 GB को कंप्रेस करने में और 30 GB बनाने में। और फिर जब वो बन गया, जी जी सर वो SSD to SSD करने में फर्क पड़ा होगा, राइट? हाँ, SSD to SSD किया तो बहुत फास्ट हो गया, 3.5 घंटे में कर दिया, वरना उसको पूरा दिन हो गया था। कोई मेरे ख्याल से 8-10 घंटे तो हो गए थे उसने कंप्रेस नहीं किया था। लेकिन फिर जब 3.5 घंटे के बाद उसने कंप्रेस किया और 30 GB, तो 30 GB को मैंने फिर जब नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे यानी सिलेंडर वाली हार्ड ड्राइव पे कॉपी किया, तो वो उसने मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर कॉपी कर दी 30 GB को। तो फायदा ये हुआ कि कंप्रेस SSD पे ही किया, SSD से फिर सिलेंडर वाली हार्ड ड्राइव पे जब मैंने कॉपी किया तो वो इजी हो गया। तो फिर यही मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की और तमाम इंडेक्सेस को कंप्रेस किया और फिर मैंने जो है उसको नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे कॉपी कर दिया। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि जो है हमने ये तो कोड तो कर लिया इसको और हमने सेव भी कर लिया पूरा कोड। अब जो है ये उसी सीक्वेंस में अपने पास कोड वर्ड सेव करेगा जिस सीक्वेंस में मतलब फाइल सेव की गई थी। मतलब अगर लिखा हुआ था CAB, अगर लिखा हुआ था फाइल के अंदर, तो जी उसी जी सीक्वेंस में सेव करेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, जिस सीक्वेंस में फाइल मौजूद है उसी सीक्वेंस में वो सेव करेगा। अब पहले सपोज करें, मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 8 बिट कैरेक्टर्स है, अगर आप ASCII कोड यूज कर रहे हैं तो आपके सही, पास मैं 8। समझ गया, ठीक है। तो सपोज करेंगे इसका कोड था 000000000, तो उसने जहां पे फाइल में ये सेव था वहां पे उसने सिर्फ 0 सेव किया। राइट। कितना आपके पास, यानी 7 हाँ, डिजिट्स बच गए आपके पास। 7 बिट्स बच गए, उन 7 बिट्स में हम कोई और लेटर्स लिख सकते हैं। हाँ, फिर उसमें जिस तरह इसके भी, अगर ये था 0000 और ये सपोज करें मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 0100 था, तो ये बाकी डिजिट्स बच गए, बाकी उसने ये सिर्फ ये कोड सेव किया और ये टेबल अपने पास वो रख लेगा। ठीक है, तो इस तरह जब वो सही डिकोड करेगा इसी टेबल को उठाएगा और इसी तरह आपके पास डेटा लिखना शुरू कर देगा और उसका साइज बढ़ जाएगा। सही। अच्छा सर, मैं जब सोच रहा था कि हम कंप्रेसिंग के एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में इस तरह की चीज़ थी कि अगर लेटर्स बहुत सारे हैं तो हम लोग पहले उनकी फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे और निकालने के बाद हर किसी को एक सिंबल मतलब एक सिंबल नहीं, इसी तरह का कोड एलोकेट कर देंगे और फिर हम मेमोरी बताएंगे कि ये कहाँ से सेव होगा। तो मतलब मेरा पॉइंट ये कि सिर्फ इसी तरह के एल्गोरिथम मिलेंगे हमें कंप्रेशन में, कुछ और डिफरेंट कैटेगरी भी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया। आपका नाम क्या है बेटा, मुझे पहचाना नहीं मैंने। अली सर, अली आमिर हमेशा ही होता हूँ। हाँ, अली आमिर। अली आमिर, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने एक कंप्रेशन टेक्निक जो है वो इन्वेंट की है और मेरा रिसर्च पेपर भी ये पब्लिश हुआ है इस पर। और वो मैं बता दूं, वो आपकी जो आपने बात की गई वो डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक है। क्या था कि मेरे पास एक लैंग्वेज थी जिसको कहते थे आप कंटेंट मार्कअप लैंग्वेज, कंटेंट मार्कअप लैंग्वेज, इसको कहते थे CMML। ठीक है, इसके जो कोड्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे। यानी कि अगर आपको मैं लिख रहा हूँ 3+5, तो ये इसका जो 3+5 का कोड था, तो वो पहले ये कहता था कि भाई ये जो है वो आपके पास नंबर है, सही है, और इसका नंबर का एक टैग बनाता था, फिर इसमें 3 लिखता था, फिर दूसरा टैग बनाता था, फिर इस तरह इसका प्लस का तो प्लस लिखता था, प्लस को आइडेंटिफाई करके, और एक बहुत बड़ा कोड बन जाता था। तो मैंने अब जैसे प्लस था तो वो प्लस कर देता था, माइनस को माइनस कर देता था, स्क्वायर रूट को SQRT करता था। तो मैंने इन सब को एक कोड दे दिया, यानी प्लस को की जगह पे मैंने इसको कोड दिया ब्रेल कोड। सपोज करें ब्रेल कोड था ये, इसका ब्रेल कोड था ये, इसका ब्रेल कोड था ये। ठीक है, तो यानी कि आपने PLUS 4 कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल कोड से, और ये एक टेबल मैंने स्टोर कर दी। जब मैंने टेबल स्टोर की तो आपको हैरत होगी कि जो जब मैंने इंडेक्स जैसे मैंने बनाया 300 GB का जो इंडेक्स था, वो 2 टेराबाइट का इंडेक्स 300 GB पे आ गया। एक्सपोनेंशियली कम हुआ मतलब, क्योंकि हमने उसको कर दिया। जी, तो
ये मेरी अपनी एक टेक्निक है और इस पे यानी कि काफ़ी साइट हुआ है मेरा पेपर रिसर्च कम्युनिटी में। ये टेक्निक उन लोगों ने भी यूज़ की और बड़ी कामयाब रही। और ब्रेल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करने की मीनिंग ये थी कि ब्रेल कैरेक्टर्स आर ओनली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पर्पस, ठीक है, बट आई एम यूजिंग दिस कोड इन फॉर डिकोडिंग एंड कंप्रेशन पर्पस। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आया कहीं पर कंप्यूटर साइंस की किसी कोडिंग में। और दूसरा ये है कि कंप्रेशन जो है बहुत ही जो है वो कंप्रेस्ड हो गई ट्री आपके पास। सही। तो आपने सही कहा अली कि हम डिफरेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो होता है कि पर्पस क्या है। तो मेरा पर्पस था कि जितनी भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के ऊपर जो बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो उसको कंप्रेस करके उसका इंडेक्स बना लिया जाए। तो वो इंडेक्स मैंने एक एक्सपेरिमेंटल बनाया और उसके साइज से जब कंपेयर किया तो पता लगा कि अगर आपके पास मिलियन ट्रिलियन टेराबाइट में अगर भी होगा या पेटाबाइट में होगा तो टेराबाइट में आ जाएगा, और टेराबाइट में होगा तो गीगाबाइट में आ जाएगा, गीगाबाइट में होगा तो मेगाबाइट में आ जाएगा। तो राइट। कंप्रेस हो जाएगा डेटा। अच्छा, और दूसरा इसकी मैंने जब रिजल्ट्स की जो है एक्सपेरिमेंटेशन की तो डिकोडिंग और इनकोडिंग में भी बहुत कम टाइम लगता है। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0.15 मिली सेकेंड लेता है डिकोड करने में और इनकोड करने में। सर क्योंकि इसमें टेबल नहीं बनाना है ना, इससे सिर्फ वो चीज़ें उठानी है, उनको एलोकेट करना। और इसमें डीएफएस एल्गोरिथम यूज किया था मैंने रिप्लेस करने में करेक्ट कोड को विद द टैग्स ऑफ सीएमएम। सही। तो बेटा अब आपको मैंने ये डिक्स्ट्रॉज और हफमैन कोडिंग करा दी, यहाँ पर हमारा कोर्स एंड होता है, ठीक है। ओके। अब आप लोग जो है वो जो भी आपको मुझसे क्वेरी करनी है आज की क्लास के बाद, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, इनामुस्सलाम से बात कर लें या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करके सही। मैसेज कर दें, ठीक है। और फिर अगर कोई सेशन रखना होगा तो हम दोबारा बैठेंगे उस सेशन पे। जी सर मैं प्रॉब्ली कंप्रेशन का ही कोई एल्गोरिथम लिखूंगा और कोशिश करूँगा कि चलाऊँ, पाइथन पे चलाने की कोशिश करूँगा कि हाँ किस तरह हाँ काम करता है। और फिर अगर कोई इशू हुआ तो फिर मैं वैसे भी आपको ईमेल कर दूंगा, और अगर कोई इशू होगा तो मैं डायरेक्टली भी पूछ लूँगा, प्रॉब्ली मैं ईमेल पर ही। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल एड्रेस सबके पास है और सबको बता दीजिएगा कि जो भी क्वेरी हो सर को ईमेल कर दें, तो मैं उसको कर लूँगा। और अगर आप 8-10 लोग जमा हो जाते हैं, कम से कम 10 लोग अगर कहते हैं कि सर एक सेशन रखें और कुछ चीज़ें आप जो है वो क्लियर करा दें, तो हम वो भी कर लेंगे, ओके। ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ये कोर्स ख़त्म हुआ यहाँ पर। और अब देखें अल्लाह बेहतर करे कि लॉकडाउन और कोविड-19 ख़त्म हो तो आप लोगों के पेपर्स हों, और अब जो यस सर। भी पॉलिसी होगी उसके मुताबिक हम जो है वो कंटिन्यू करें, ठीक है बेटा। तो फिर ओके क्लास सर। कर दी जाए यहाँ पे, आप बताइए। जी सर। ठीक है, तो अभी क्लास यहाँ पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह जो है वो आपसे जो है वो यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती है, और जैसे भी और वैसे वी विल इन कांटेक्ट थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप और एनी अदर कम्युनिकेशन रिसोर्स। ओके, ओके सर। ओके, थैंक, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।